Good morning, students. I am Amandeep Yadka, your math teacher. Today we will discuss our next exercise 9.2 of chapter 9. Find the product of the following pair of monomials. Its very first sum, we will find the product of pair of monomials. We have discussed about monomials in our previous lecture. Monomial, an expression which is having only one term is called monomial, like 7x, 4y. These are monomials because these expressions are having only one term. ठीक है. In the first sum we will find the product of the pair of monomials, means कि दो pairs monomial ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ product find out ਕਰਨੀ ਹੈ. ठीक है. First part, find the product of 4 multiply 7p. ठीक है. 4 और 7p ਦੀ ਆਪਾਂ multiply find out ਕਰਨੀ ਹੈ. ठीक है. ਇਹ ਵੀ monomial ਹੈ और 7p भी monomial है. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਆ ਲਾਈਕ p q r t ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵਿਚ ਵੈਰੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ. ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ 4 7. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 28 ਔਰ p ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ p ਐਜ਼ ਇਟ ਰਹੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 28p. ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਆਲ. ਨੈਕਸਟ, in the second part it is given find the product of minus 4p and 7p. In this sum we will find the product of minus 4p and 7p. ठीक है. First we multiply the constant terms minus 4 और plus 7. ਠੀਕ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ p ਹੈ ਔਰ 7 ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ p ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7. ਫਿਰ ਜੋ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ. 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 28. ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ. p ਮਲਟੀਪਲਾਈ p ਸਕੇਅਰ because there are p 2 times. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. p 2 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ p raised to 2. ਠੀਕ ਹੈ. p ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ. Similarly in the third part minus 4p and 7pq. ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 4 ਔਰ 7. ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਮਾਈਨਸ 4 ਔਰ 7 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ p ਮਲਟੀਪਲਾਈ p q. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 7 ਮਾਈਨਸ 28. ਠੀਕ ਹੈ. ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. p ਦੇਖੋ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ p ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ. q ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ q ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 28p ਸਕੇਅਰ q. ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕਲੀਅਰ ਆ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ 2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ.
ठीक है। हुण फिफ्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट 4PQ मल्टीप्लाई -3P। देखो हुण मैं ब्रैकेट दे मीनस कि मल्टीप्लाई तो बाद मैं ब्रैकेट यूज किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि आपां कदे भी दो साइंस इकट्ठे नहीं कर सकते, ठीक है। जिमें कि अपना एक साइन तो मल्टीप्लाई का हो गया, दूसरा साइन नैगेटिव है, तो आप इस तरह नहीं इनू लिखांगे मल्टीप्लाई और नैगेटिव, इनू प्रॉपर वे की लिखन का आप ब्रैकेट दे विच लिखांगे, ठीक है जी। तो अपने को है 4PQ मल्टीप्लाई -3P, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेम हुंदा है। तो ये भी कॉन्सटेंट टर्म्स नूं पहला मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -3 और प्री 3 टाइम्स है फर्स्ट जो टर्म है, सैकेंड टर्म दे विच भी सैकेंड एक्सप्रैशन दे विच भी सिंगल टाइम्स है। तो 4 मल्टीप्लाई 3 -12, P 3 टाइम्स है, P 1 टाइम्स है, ठीक है जी। तो P कितना आ गया 4। वैसे भी देखो कि P 3 आ P 1 आ, तो जदों बेस सेम हुंदा ਤਾਂ जो पावर्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ प्लस हो ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ P ਦੀ ਪਾਵਰ 3 P ਦੀ ਪਾਵਰ 1, it means it becomes P4। its answer is -12 P4। clear? in the fifth part multiply 4P मल्टीप्लाई 0 नाल मल्टीप्लाई करांगे। देखो 4 नूं अगर 0 नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को की आंदा है 0, ठीक है। 0 नूं P नाल मल्टीप्लाई करांगे, ठीक है, लिखण की जरूरत नहीं है दोनों। देखो अंडरस्टूड ही है कि 0 नाल किसी भी आप टर्म नूं एक्सप्रैशन नूं मल्टीप्लाई करांगे तो इट बिकम्स 0 ओनली, ठीक है। तो अपना आंसर किया गया 0, ठीक है। 0 नूं P नाल मल्टीप्लाई करांगे फिर भी 0 ही आएगा, तो आप इत्थे सीधे आंसर लिख देना है 0। In the second part, second sum, find the area of rectangle with the following pair of monomials. Their length and breadths are given. ठीक है। In the second part, length of the rectangle and breadth of the rectangle is given. We will find the area of the rectangle. ठीक है। Now we know that area of rectangle is equal to length cross breadth, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ rectangle ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਕ੍ਰੋਸ ਬ੍ਰੈਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੇਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ L ਕ੍ਰੋਸ B ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। L ਮਲਟੀਪਲਾਈ B, you can say L product with B, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ की प्रोडक्ट की होंगी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन द फर्स्ट पेयर इट इज गिवन P, Q, ठीक है। P, Q गिवन है, इट मीन्स P इज लेंथ एंड Q इज ब्रेथ। देन वी विल राइट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू P, breadth of rectangle is equal to B, ठीक है। तो P, Q ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट की अपने को लेंथ है, सैकेंड की है ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड आप लिखांगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L क्रॉस B, मीनस कि L की जगह ते आप P लिख देंगे, B की जगह जो ब्रेथ है उसकी जगह ते आप की लिख देंगे Q लिख देंगे। तो इसका आंसर की आ गया PQ, PQ, ठीक है जी। यूनिट स्केयर यूनिट, क्योंकि आपां इस तरह नहीं दिता कि सेंटीमीटर है मीटर है, तो जदों भी आप एरिया फाइंड आउट करना तो अपना यूनिट की होंगे एरिया का स्केयर ऑफ मीटर, ਜਾਂ आप लिख देने स्केयर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये लिख देंगे यूनिट स्केयर, यूनिट स्केयर, ठीक है। यूनिट मीनस कि आपको पता नहीं लेंथ मीटर है सेंटीमीटर जो भी है, वैसे भी एक्सप्रैशन च मीटर सेंटीमीटर नहीं आप देखते, तो आप की लिखांगे यूनिट स्केयर, मीनस कि आंसर क्या आ जाएगा PQ यूनिट
ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਨਿਟ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਕਿਊ ਸਕੇਅਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਫॉर्म है यूनिट। ठीक है जी। इन द सेकेंड पार्ट लेंथ 10m, 5n। ठीक है, ये पेयर आपां नूं गिवन है सैकेंड सम दे विच। ਇਹਦਾ मतलब यही है कि आपां नूं लेंथ गिवन है 10m और ब्रेथ गिवन है 5n। ठीक है जी। तो आप लिख देंगे लेंथ इज 10m and breadth is 5n। we know that area is length cross breadth means कि 10m multiply 5n। ठीक है, in the same we are done in first sum। first multiply the constant terms and then multiply the variables। तो ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ 50mn। ठीक है जी। मल्टीप्लाई तो आप उस तरह ही करनी है प्रोडक्ट जिवें आप फस्ट सम दे विच कीता। बस जो भी आपां नूं पेयर है उहदे विच फस्ट जो टर्म आ वो लेंथ आप लैट करनी है और जो सैकेंड टर्म आ उहनूं ब्रैथ लैट करना है और दोनों दी प्रोडक्ट करनी है। जिवें हुण यह है 20x स्केयर और 5y स्केयर मीनस कि आप मल्टीप्लाई करांगे 20x स्केयर मल्टीप्लाई 5y स्केयर। तो 20 मल्टीप्लाई 5 100। एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर आ जाएगा, वाई है तो वाई स्केयर, क्योंकि ये जो अपने को वेरीएबल्स है अलग अलग है, बेस इन्हां दा सेम नहीं है। अगर वाई की जगह ते एक्स स्केयर ही हुंदा तो आपां की लिख देंगे 100x4, बट बेस सेम नहीं है तो आपां की लिखता एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, अदर पार्ट्स यू विल ट्राई योर सेल्फ। नाउ इन द थर्ड सम कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट दा टेबल फाइंड आउट करना। तुसीं देखो आपां नूं जो ए टर्म्स है फर्स्ट मोनोमियल्स दिता है और ये सैकेंड मोनोमियल दिता। ठीक है जी। मीनस कि जिवें आपां फर्स्ट सम दे विच कीता सी, जिवें आपां नूं देखो 2x माइनस 5y स्केयर 3x सॉरी माइनस 5y 3x स्केयर तो फर्स्ट मोनोमियल दे रखिया है। मीनस कि आपां नूं दिता होया कि 2x दी मल्टीप्लाई करो 2x नाल, 2x मल्टीप्लाई 2x तो यदि मल्टीप्लाई की हो जाएगी 4x स्केयर, तो 4x स्केयर ही आंसर आ रहा है ना। एक बार फिर देखो इनू तुसी की करना है कि 2x नू पहला 2x नाल मल्टीप्लाई करोगे की आ गया 4x स्केयर, फिर 2x नू माइन सेकेंड जो टर्म है उहदे नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो की आ जाएगा अपने को आंसर -10xy। ठीक है जी। फिर इस 2 नू आपां 3x स्केयर नाल मल्टीप्लाई करांगे, फिर इस 2x नू आपां -4xy नाल करांगे, फिर इस 2x नू आपां 7x स्केयर वाई स्केयर नाल करांगे। ठीक है जी। इसी तरह आपां जो भी प्रोडक्ट है फाइंड आउट करांगे। क्लीयर टू ऑल। तो ये तुसी आंसर अपने मैच भी कर सकते हो। आंसर्स आर गिवन द बैक पेजेस ऑफ योर मैथ। Similarly, in the second expression, it is given -5y। फिर -5y ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਰਸਟ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 10xy। ठीक है जी। फिर 5 -5y ਨੂੰ -5y ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 25, y मल्टीप्लाई y स्केयर 25 y स्केयर। इस तरह तुसी जो प्रोडक्ट है दी फाइंड आउट करोगे। क्लियर। इन द फोर्थ पार्ट ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन। ठीक है जी। आपां वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है किसी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की। ठीक है, वॉल्यूम की हुंदा एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, कि वॉल्यूम किस कोई भी चीज जिन्नी जगह घेरदी है उन्होंने आपां की कह देनी है वॉल्यूम कह देनी है। ठीक है जी। तो हुण तुसीं इहदे विच देखो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 5a फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 3a स्क्वायर और 7a4 ठीक है जी। तो 5a है जो वो अपने को लेंथ है, लेंथ इज 5a एंड ब्रेथ इज 3a स्क्वायर ठीक है एंड हाइट इज 7a4। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ये तुसी अपने आप लिखना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। जिमें देखो आप लास्ट सैकेंड सम दे विच की कीता सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कीता सी, तां आपां एल क्रॉस मल्टीप्लाई बी कीता सीगा ठीक है, एल प्रोडक्ट बी कीता सी। बट अगर आप वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स फाइंड आउट करना तो की आ जाएगा लेंथ क्रॉस ब्रेथ क्रॉस हाइट। मीनस कि तुसी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी मल्टीप्लाई करनी है। तो लेंथ दी वैल्यू आप 5a फिल कर देंगे, ब्रेथ दी वैल्यू आप 3a स्क्वायर फुल कर देंगे और h दी वैल्यू आप 7a4 फिल कर देंगे। तो ये भी सेम पहला कॉन्स्टेंट टर्म्स नू मल्टीप्लाई कर लांगे आपां ठीक है जी। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हुण ए दे जो वेरीएबल्स उन्होंने मल्टीप्लाई कर देखो ए इत्थे 1 टाइम है, ए इत्थे 2 टाइम्स है, इत्थे ए 4 टाइम्स है। मीनस कि ए दी पावर की होगी 4 + 2 6 6 + 1 7। तो ए अपने को की आ गया 7 टाइम्स। तो अपना आंसर की आ गया दे विच 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 a7। तो 15 मल्टीप्लाई 7 तुसी करोगे 15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करांगे आपां तो यदी प्रोडक्ट जिहड़ी हैगी तुसी फाइंड आउट कर लोगे, वो तुहाडा आंसर आ जाएगा। जो भी आपां देखो हुण करके दिखानी मैं तुहानूं 5 मल्टीप्लाई 3 15 15 मल्टीप्लाई 7 105। तो वह अपने को की आ जाएगा 105। 3 मल्टीप्लाई 5 15 15 मल्टीप्लाई 7 105। ए किन्नी बार आ रहा अपने को देखो ए दी पावर 1 है, ए दी पावर 2 है, ए दी पावर 4 है, इट मीनस ए 7। तो यह आंसर अपने को की आ गया 105 a7। क्लियर। Similarly, in the second part, length is 2p, breadth is 4q, height is 8q. We will find the volume. We will write volume of rectangular box is equal to, firstly we will write the formula of the volume of the rectangular box. Then fill the value of L, that is 2p. Then B, that is 4q, H, that is 8q, sorry 8r ठीक है जी। तो इत्थे भी अपने को H की वैल्यू 8r सी, इन्हूं ठीक कर लियो तुसी। हाँ जी, हुण कॉन्स्टेंट टर्म्स नूं मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 8 64। हुण देखो P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R है, तो आपां की लिख देंगे P Q R। अगर बेस सेम होंगे फिर आप पावर्स ऐड कर सकते सी। क्लीयर। देखो लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ की वैल्यू फिल कर दो, ब्रेथ एंड हाइट फिल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अदर पार्ट्स यू विल ट्राई योरसेल्फ। इन द फिफ्थ पार्ट, in the fifth sum, obtain the product of x y y z z x। ठीक है, expressions are, first expression is x y, second y z, third z x। ठीक है जी। हुण देखो x जो है, x किन्नी बार इस दे विच आ रहा, देखो x y अपने कोल है x y मल्टीप्लाई y z मल्टीप्लाई z x।
ਤਾਂ x ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ y ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ z ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਗੀ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ z ਸਕੁਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ x ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ y ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ z ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ x ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ z ਸਕੁਅਰ similarly in the second part it is given a multiply minus a square multiply a cube देखो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਫ ਬੇਸ ਆਰ ਸੇਮ ਦੈਨ ਪਾਵਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਡਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 plus 2 3 3 plus 3 6 its answer is minus a 6 third fourth part you will try yourself fifth part m minus mn mnp ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਲਗਾਓਗੇ ਕੋਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ m ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ m 3 n ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਟਾਈਮਸ p single times or plus minus 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 m cube n square p square is its answer. Thanks to all.